Good morning, my dear students. That is our first video after vacation for accountancy. I am taking chapter number 4. Already we have completed 3 chapters. Okay, you have to view all the chapters and complete your syllabus. Chapter number 4, that is admission of a partner. Okay, so admission of a partner means whenever any partnership firm is going on. Okay, old partners is there, and because they need more funds, because they need more help for work. Okay, because their business is expanding, for that they need some more person in the business. So that is, so many reasons are there for taking new partners. Okay, that is called admission of a partner in the business firm. So at the time of admission of a partner, there are 5 or 6 adjustments are there. That first one, you have to determine the new profit ratio and sacrificing ratio. You have to adjust the goodwill. You have to adjust all the old reserves and accumulated profits and losses, and you have to find out the that you have to reassessment of assets and reassessment of liabilities, as well as you have to uh, determine the capital adjustment. Okay, so in that, in case of that all adjustments, I am taking first one, that is determination of new profit sharing ratio. Already we have discussed new profit sharing ratio in third chapter, but that is different one. That is depend upon the when new partner is entering in your business. Here I am taking one example, that is Amit and Sumit. Two old partners are there. They are old partners. Okay, and their old profit sharing ratio is, all profit sharing ratio is 3:2, and they admit Mr. Vishal as a new partner. He is a new partner, and they agreed to give 1/5 of share, 1/5 of profit to the Vishal. In that case, how will you calculate new profit sharing ratio? One formula is there. Okay, in that case, first of all, Amit, right, Sumit and Vishal, 3 partners are there. Vishal share is fixed, that is 1/5, and we have to calculate for Amit and Sumit. Here you have to take, let the profit be 1. Okay, आपने माना कि आपके पूरे बिजनेस का प्रॉफिट 1 हो रहा है, एंड Vishal's share is 1/5. So remaining share, after giving 1/5 of profit to Vishal, कितना बचेगा? ओके, तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा हमारा? 1 minus 1/5. So here you have to take LCM, that is 5. 5 minus 1, that is 4/5. So that much profit is remaining for the old partners, and they share that profit in their old profit sharing ratio. So how will you calculate? That is remaining for them. दोनों के लिए 4/5 बच गया. अब इस 4/5 को वो कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? दैट यू विल टेक फ्रॉम दिस ओल्ड रेशियो. इस ओल्ड रेशियो में करेंगे, बिकॉज नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन. Actually, in case of new profit sharing ratio, whatever they have mentioned, whatever the condition they have given in the question, accordingly we have solved the question. Okay, but here no condition is given. It means कि जो भी उनका remaining share है profit का, वो ये दोनों अपने old share में बांट रहे हैं. So you have to multiply that 4/5 by their old share. Their old share of Amit is 3/5 and Sumit is 2/5. याद है ना आपको कि इन दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर बनता है. सो 3/5 and 2/5. Now you have to multiply it. That is 12/25. That is 8/25, and you have to normalize that denominator. कैसे होगा वो? जब हम इसे 5/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो इट बिकम 5/25. अब सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप बोल सकते हो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज कॉल्ड NPR. हमारा NPR हो रहा है 12/8/5. Okay, that is our
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. One more thing I have mentioned it, that is sacrificing ratio. Okay, so how will you calculate sacrificing ratio? For that you have to what you have to do, I am erasing this. You explain that sacrificing ratio. So in that case now we know what is our new profit sharing ratio. Sacrificing ratio निकालने के लिए हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, जो कि हमारे पास था, दैट इज 3/2. ओके, सैक्रिफाइस रेशियो केवल ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है. दैट्स व्हाई SR, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओके, SR का फॉर्मूला क्या होता है? OR माइनस NR, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. अंडरस्टैंड? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें किसका निकालना है? अमित और सुमित, बिकॉज दीज आर ओल्ड पार्टनर्स. सो अमित एंड सुमित. ओल्ड रेशियो फॉर अमित क्या था हमारा? ओल्ड रेशियो है हमारा 3/5 और सुमित का ओल्ड रेशियो कितना है हमारा? 2/5. अंडरस्टूड? देन यू हैव टू सबट्रैक्ट न्यू रेशियो. न्यू रेशियो अमित का क्या है? अमित का है 12/25 और सुमित क्या है? 8/25. यहाँ से भी 25 ही आएगा, आप ऐड कर लीजिए इसे. 12 + 8 20, 20 + 5 25. ठीक है, चाहे बाहर से उठा लो चाहे आप इसको ऐड करके निकालो, ये आएगा. अगेन यू हैव टू टेक एलसीएम. यहाँ पर आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, आपको एलसीएम नहीं आना चाहिए. दैट इज 25 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय, टू मेक इट नॉर्मलाइज. इसको 25 बनाने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 5 × 3 यानी कि 15 माइनस यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 25 है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ पर 12 आएगा. तो ये आपका आ रहा है 3/25. यहाँ पर भी अगेन सेम फॉर्मूला 25, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 10. ये 1 से मल्टीप्लाई होगा इसलिए 8, तो ये आएगा आपका 2/25. तो देखिए आपका जो सेक्रीफाइस रेशो है वो भी कितना आ रहा है हमारा? वो आ रहा है 3:2. तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, अगर मैं कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, इन दैट केस केवल आपको नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, तो जो उनका ओल्ड रेशो होता है ना वही हमेशा सेक्रीफाइस रेशो आता है. ये एक टिप है. लेकिन आप कभी भी इस पे जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा. फिलहाल तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है और ये इंश्योर करना है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है. ओके, सो दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Now I am taking one more example that is different from previous one. Okay, here I am taking two partners, that is A and B, and their old ratio is given, that is 3:2. Okay, and new partner is C is here, and ये decide है, pre decided कि वो 1/8 शेयर लेगा प्रॉफिट का. ओके, फ्यूचर में. बट वन कंडीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट A and B have decided that they share their future profit in the ratio of 4:3. इसमें कंडीशन गिवन है कि A और B ने अब ये डिसाइड किया है कि वो अपना जो नया रेशो बनेगा, उनका फ्यूचर जो प्रॉफिट होगा वो 4:3 में बांटेंगे. तो यहाँ पर कंडीशन चेंज हो गई, उन्होंने कंडीशन लगा दी. अब ये नहीं है कि सिर्फ नया शेयर जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर दिया हुआ है. ठीक है, इन दैट केस अब हमको कैसे सॉल्व करना है? वही आ जाएगा कि लेट द प्रॉफिट बी 1. ओके, लेट द प्रॉफिट बी 1. तो सी शेयर कितना हो जाएगा? सी का शेयर आपका हो रहा है 1/8. तो रिमेनिंग पार्टनर शेयर कितना हो रहा है? रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर दैट इज 1 - 1/8, इट बिकम्स 7/8. ठीक है, समझ में आएगा ना 7/8 कैसे आएगा? जब आप एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 8, यहाँ आपका मल्टीप्लाई होगा 8 - 1 दैट इज 7/8. कंडीशन क्या गिवन है कि जो नया ए और बी है वो अपना फ्यूचर प्रॉफिट 4:3 में बांटेंगे. तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ए, बी एंड सी. सी का तो फिक्स है 1/8, इनके लिए रिमेनिंग शेयर बचा है 7/8. अब ये 7/8 कैसे बांटे? प्रीवियस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं था कि वो नया शेयर कैसे बांटेंगे, इसलिए हमने उसको ओल्ड शेयर में बांट दिया था. बट इन दैट केस न्यू शेयर, न्यू प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट वो कैसे बांट रहे हैं दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 4:3 में बांटना है हमें. तो ये मेंशन्ड है, इसलिए हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे? दैट इज 4:3 मीन्स कितना होगा? 4
4+3 मीन्स 4/7 एंड 3/7, तो ये 4/7, ये 3/7, तो ये आपका हो जाएगा 7 8 जा 56, इसको हम 56 लेते हैं, और 7 4 जा 28, यहाँ पर भी 21/56, राइट, और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो 7/56 हो जाएगा, राइट। अब हमारा न्यू रेशो बन के आ रहा है 28, 21 और 7। अगर ये किसी एक नंबर से इसको लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं तो ले आएंगे, आ रहा है, सबको 7 से कैंसिल कर सकते हैं, 7 4 जा 7 3 जा और 7 1 जा, तो योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दैट इज NPR इज 4:3:1, ओके। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको SR निकालना है, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो, फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ कि आपको याद हो जाए। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। किसका निकालना है हमें, A और B का, क्योंकि ये लोग नए पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशो था 3/5, 2/5, न्यू रेशो इनका आ रहा है 4:3, यानी कि कितना आ गया, 4 + 3 7 + 1 8, तो ये हो गया 4/8, और ये हो गया आपका 3/8। यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ रहा है, दैट इज 40, 8 3 जा 24, 5 4 जा 20, और यहाँ पर भी अगेन 40, 8 2 जा 16, 3 5 जा 15, तो ये आपका आ रहा है 4/40, ये आ रहा है आपका 1/40, ओके। सो योर सैक्रिफाइसिंग रेशो इज 4:1, okay. So this is your again question which we have solved, which is different from the previous one, okay. So I am taking one more example for you that is also different from the previous one. Here Anil and Vimal, two partners are here, and their old ratio is 3:2, and Chetan is a new partner who is admitted in the firm. Here his share is 1/4, okay, but that 1/4 he acquires from Anil and Vimal in the ratio of 2:1. Again condition is mentioned in the question कि जो चेतन है वो 1/4 शेयर तो उसे मिल रहा है, बट वो कहाँ से मिल रहा है उसको, वो मिल रहा है किससे, अनिल और विमल से, और किस रेशो में मिल रहा है, दैट इज 2:1, ये मेंशन्ड है। इन दैट कंडीशन हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपल तरीका ये है कि जैसा वो बोल रहा है वैसा हम करते जाते हैं। हमने यहाँ पर अनिल को ले लिया, अगेन आई एम टेकिंग विमल हेयर, एंड लास्ट वन इज चेतन है, ओके। चेतन, शेयर ऑफ चेतन इज फिक्स्ड, दैट इज 1/4. Now I am taking Anil and Vimal. The old share of Anil is 3/5 and old share of Vimal is 2/5. Okay, in that type of question. Now he acquired 1/4 of his share from A in the ratio of this. So now the ratio of Anil is decreasing here. Decrease होगा ना वो. In case of most probably 99% condition में decrease होगा, क्योंकि वो सैक्राइज होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार सैक्रिफाइस हो, ऐसा भी हो सकता है इन सम ऑफ द रेयर कंडीशन, और जो हॉट क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं उसमें ओल्ड पार्टनर्स भी गेन कर सकते हैं, ओके। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया -1/4 जो शेयर है चेतन का, वो किस रेशो में ले रहा है, अनिल से ले रहा है 2/3, इन दोनों को ऐड करके लेते हैं, आपको पता ही है 2/3, और विमल से ले रहा है 1/2, ठीक है। इसका मतलब अनिल का शेयर इस पार्ट से घट जाएगा और विमल का इस पार्ट से। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3/5 माइनस 2/12, राइट, दैट इज 2/12। यहाँ पर 2/5 माइनस 1/12, अगेन हमें एलसीएम लेना होगा, दैट इज 60, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 × 3 36, 2 × 5 दैट इज 10। यहाँ पर अगेन वी आर टेकिंग एग्जाम एलसीएम, दैट इज 60, 12 2 जा 24 एंड 5 1 जा 5, ये आपका आ रहा है 26/60, ये आपका आएगा 19/60, और इसको 60 बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, ओके। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मुझे इसे
15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेरा हो जाएगा 15/60. सो माई न्यू NPR, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 26:19:15. ओके. एंड इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको सेक्रीफाइस रेशियो तो वहीं का में छुपा होता है. ये आपका सेक्रीफाइस है, दिख ही रहा है कि जो अनिल है उसने कितना सेक्रीफाइस किया 2/12, और जो बिमल है उसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/2. आप जब व्हेन यू कैलकुलेटेड, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तब भी ये 2:1 आएगा, विच इज ऑलरेडी गिवन हियर. ओके, ये अंडरस्टूड है. आगे जाके जब हम गुडविल के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो की जरूरत पड़ती है. तो इन दैट केस अगर इस तरीके की कंडीशन है तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि भाई यही सेक्रीफाइस रेशियो है. ओके, सो दैट इज अवर न्यू NPR. In that way I am taking today three type of question for new profit sharing ratio. In next video I will complete the next type of questions. उसमें और भी different type के questions होंगे. So it is very important for you. You have to complete the question related to new profit sharing ratio which we have discussed today. Okay, so keep learning. Take care. Goodbye.